Hello, all the future assistant professor. Today we are going to solve paper 1 December 2023. As all of you requested that please ma'am start the series of PYQ of paper 1. So here it is. Today we'll be discussing paper 1 December 2023 and we'll be discussing only the theory parts. Why? Because maths questions are very lengthy one. DI is very lengthy one. So I'll be making a different video for this. Okay. So without any delay, let's get started. So let's get started. Today we are only going to solve the theory portion. Okay, we are only going to solve the theory portion. Why? Because we'll cover the DI and maths portion in a separate video. So let's get started. I'll just show you the question first. So this was the maths question. DI, very easy, very basic one, but yes, it needs the require of the all the formulas, like you should be knowing what is income, what is expenditure, what is profit loss and company. So that's why as of now we are leaving this. We'll cover the most important and the most repetitive question. Okay, let's get started. Yes. So the very first question is that which of the following are true about producer gas. So आपको ये पता करना है कि producer gas में क्या क्या सही होता है. The very first is it is the result of conversion of solid biomass into gaseous fuels. वो क्या करता है, एक result होता है जो कि सॉलिड बायोमास को लिक्विड में गैसियस में कर देता है. ठीक है, पढ़ते हैं. इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर. इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स. इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर गैस डिटरमिन इन इट्स हीटिंग. सो द वेरी फर्स्ट इज दैट येस इट इज अ रिजल्ट. प्रोड्यूसर गैस इज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड बायोमास टू गैसियस. ये सही है. बी इट कैन बी डन एट लोअर. नहीं, ये लोअर टेम्परेचर में नहीं होता, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. Then it can be used as a fuel in internal combustion engines. Yes, it is correct. It is used. Okay. Then it is produced complete absence. नहीं, बिना ऑक्सीजन का ये हो ही नहीं सकता, because since it is a बायोमास उसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो सकता है. हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर गैस डिटरमिन इट्स हीटिंग वैल्यू. येस, इट इज ट्रू. सो व्हाट आर द ट्रू? ए, सी एंड ई. सो द करेक्ट आंसर इज A, C and E. This is the correct answer. Now the next question is given below are two statements. Statement 1 is in teacher centered learning the teacher gives up the traditional decision making role, choose instead the role of a facilitator who focuses on students feeling. नहीं, टीचर सेंटर्ड लर्निंग में वो अपना ट्रेडिशनल जो चॉइस होता है वो गिव अप नहीं करता है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट इज दैट इन लर्नर सेंटर्ड मेथड द टीचर अटेम्प्ट्स टू सी द वर्ल्ड एज अ स्टूडेंट सी इट क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन. येस, इन लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, सी द वर्ल्ड एज अ स्टूडेंट सी इट. और इसीलिए व्हेन सी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, व्हेन एवर यू सी टीचर एंड स्टूडेंट टाइप क्वेश्चन, अगर वो टीचर के बारे में पूछ रहा होता है, आप अपने आप को एज अ टीचर एज्यूम कर लो कि इफ़ यू वुड हैव अ टीचर, क्या आप ऐसे बिलीव करते. और अगर आपको लर्नर का पर्सपेक्टिव पूछ रहा है, मेक योर सेल्फ एज अ लर्नर एंड देन, तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ही इसलिए बनाया गया है कि इसमें टीचर्स क्या करें, टीचर्स स्टूडेंट का वैल्यू देखें कि स्टूडेंट कैसा क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर, एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन है या नहीं. सो दिस इसमें पूछा कि कौन सा सही है, तो इसमें है 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट. सो द करेक्ट statement is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Now we move to question number 10. What is the correct sequence of steps are followed from initial to the during of the water process? Since it was a dropped question, but आप इसका आंसर्स कर लेना, ये ऑप्शंस में रॉन्ग दिया हुआ था, इसलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. More laws have been added to on the books in past 5 years. तो क्या हुआ, बहुत सारा लॉज ऐड किया गया है देन एवर बिफोर. येट द नंबर ऑफ क्राइम्स, बट फिर भी क्राइम्स कमिटेड जो होता है वो बढ़ ही रहा है. ऐसा नहीं है कि लॉज बढ़ रहा है बट क्राइम्स घट नहीं रहा है, लॉज भी बढ़ रहा है और क्राइम भी बढ़ रहा है. देयरफॉर टू ब्रिंग द क्राइम रेट डाउन वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज. लेकिन क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि ठीक है, अगर हम लोग को क्राइम रेट नीचे करना है, अगर हम लोग को क्राइम रेट नीचे करना है तो हम लोग को लॉस को एलिमिनेट कर देना है. क्या ये सही है? तो नहीं, दिस इज फॉल्स कॉज. ये सही नहीं है. दिमाग लगा के सोचना, दिस आर वेरी बेसिक क्वेश्चन और दिमाग लगा के आप कीजिएगा तो इट इज वेरी इजी. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इशू. सैम्पलिंग इशूज में क्या होता है, दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्विस. तो आप लोग को सैम्पलिंग इशूज में देखना है. सो इसके लिए यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सैम्पलिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स आर देयर. सो उसके लिए आपको बेसिक में जाना पड़ेगा और आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. मेनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. या इट इज़ करेक्ट. क्या होता है, इसीलिए होता है जैसे हम किसी का भी सर्वे करते हैं, जैसे होता है कि आपको कौन सा सर्फ अच्छा लग रहा है, टाइड अच्छा लग रहा है, सर्फ एक्सेल अच्छा लग रहा है या रिन अच्छा लग रहा है. तो मेरे पास क्या है, ये क्या बोल रहा है, मैनी पीपल यूज़ मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन हम अपना फ़ोन चला रहे हैं, बट मेरे फ़ोन से हो सकता है कि हम किसी का वाईफाई भी चला रहे हो या फिर किसी का कुछ भी चला रहे हो, तो मेरा जो एक्यूरेट डेटा है वो सही नहीं आएगा. वो दिखाएगा आईपी एड्रेस किसी और का, लेकिन वो मेरा ओपिनियन है. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप. तो इसीलिए ये सही है. ये एक इशू आता है कि इंटरनेट बहुत सारे एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं. देन एवरी पर्सन हैज़ ओनली वन यूनिक. नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग. आप तो ये तो एवरीबडी नोज की ऑब्वियसली. ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले हो तो आपने सिर्फ एक
खुद का ही बनाया हुआ है, नॉट्स नॉट राइट. देन अ हाउस होल्ड में हैव वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर्स. येस अगेन कि एक कंप्यूटर हो सकता है बट यूजर्स बहुत सेवरल हो, तो या दिस इज एन ऑल्सो इशू. देन इंटरनेट यूजर्स आर अ बायस सैम्पल ऑफ द पॉपुलेशन. येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर A, C and D only. Okay. नाउ ये तो यूजीसी नेट का फेवरेट है, SDGs एंड MDGs, ये फेवरेट क्वेश्चन है. तो प्लीज़ आप आपने अगर नहीं पहचाना है, नहीं जाना है, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दी MDGs गोल्स और SDGs गोल्स. दे आर वेरी फेमस फॉर लास्ट 5 or 10 years. Then see, Millennium Development Goals were mainly targeted at developing or पुअर कंट्रीज. येस इट इज करेक्ट, इसीलिए ये इसको बनाया ही गया था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 2, स्टेटमेंट 2, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग और पुअर. येस दिस इज करेक्ट. SDGs सबके लिए बनाया गया था, अगर वो डेवलप्ड है तो भी, डेवलपिंग है तो भी, और पुअर है तो भी. बट MDGs वर ओनली फॉर द डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज. सो येस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. Then the next question, the organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as schemas. So this is again important और new question आप बोल सकते हो. तो these are the 5 types question जो कि UGC नेट में आपको क्वेश्चन परेशान करने के लिए पूछेगा इन पेपर 1. पेपर 2 में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं टू मेक यू नर्वस, टू मेक यू फील एंग्शियस और एंग्जाइटी आपका आता है. बट फॉर पेपर 1 ऑल्सो 5 टाइप अलग अलग डिफरेंट टाइप का आता है. ओके. Now we move to next question. In comparison to secondary computer storage, primary storage is what? So they are basically asking the comparison between secondary computer and primary storage. So क्या होता है, ये faster होता है. प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, फास्टर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यूनिट ऑफ स्टोरेज, पर यूनिट ऑफ स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. किसका, प्राइमरी स्टोरेज का. बट दे आर नॉट परसिस्टेंट. ठीक है, आपको यही याद करना है. दे आर फास्टर, प्राइमरी स्टोरेज इज फास्टर, मोर एक्सपेंसिव per unit of storage and not persistent. Okay. Now we move to question number 17. Identify the similarities between the quantitative and qualitative research. Very important plus most repeated question. अगर आपने ये नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए. बेसिक इन डेप्थ ये हमेशा आता है, मतलब दिस हैज़ टू कम इन ईच एंड एवरी ईयर ऑफ एग्जामिनेशन राइट. तो इसमें आपको बताना है कि सिमिलैरिटीज़ क्या है. सिमिलैरिटीज़ आर बोथ आर कंसर्न विद डेटा रिडक्शन. येस दोनों काम करते हैं डेटा रिडक्शन में. आपके पास सपोज 1 लाख का डेटा है, 1 लाख पीपल का डेटा है, बट आपको क्या खोजना है कि जो बेसिक दोनों में सिमिलर हो. तो येस इट कंसर्न विद द डेटा रिडक्शन. ठीक है. बोथ आर कंसर्न विद द वेरिएशन इन डेटा. येस इट डज. It is also correct one. These are the similarities. Okay, we are talking about the similarities. Lay emphasis on contextual understanding. नहीं भले qualitative contextual में करेगा, but quantitative no, big no. Both lay emphasis on generalization. No, it is not. Generalization का बिल्कुल अलग है concept. Both are concerned with answering the research question. Yes, it is true. When you will be doing the PhD after your UGC NET exam अगर आपका clear हो जाता है, then you will be doing your PhDs. जब आप PhD करोगे ना, then you will understand सबका real life में क्या यूज़ है. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको बस रटने के लिए मत पढ़िए. आप समझिए कि आप PhD कर रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. जब आप ऐसे पढ़ने लगोगे ना, इट लिटरली विल हेल्प यू अ लॉट. सो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं. इट इज़ A, B एंड E. A, B and E. Okay. Now we move to question number 18. Which of the following was recommended by the Hunter Commission? जितने भी कमीशन है ये हायर एजुकेशन का है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए कौन कौन सा कमीशन है. वो डिस्पैच कब आया है, स्टडी का हायर एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज कब आया है, इंग्लिश को कब मान्यता मिली है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं, कौन सा आर्टिकल है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट मिस इट. ओके. देन सो हंटर कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, दे रिकमेंडेड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन. ठीक है. इट वॉज नॉट एबॉलिशन का बात नहीं हुआ है, रेस्ट्रिक्टिंग ये सब बिल्कुल जो भी आपको एक्सट्रीम में दिखे ना, एक्सट्रीम वो आप समझ लीजिए कि वो गलत है. ठीक है. सो इनकरेज एस्टैब्लिश मोर, नहीं दिस इज गलत. ठीक है. सो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इन दी हायर एजुकेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन. आपको करेक्ट रीजन बताना है. राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू. अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज अ लिटरेचर रिव्यू. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, मोस्ट रिपीटेड प्लस इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड येस इट इज़ करेक्ट. जब आप रिसर्च लिखने जा रहे होते हो ना, जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखने जा रहे होते हो तो आपको ये बहुत बेसिकली पता होना चाहिए. इफ़ यू विल गो टू शोध गंगा, आप अगर शोध गंगा के वेबसाइट पे जाते हो और आप जो सोच भी रहे होगे ना कि चलो लेट्स मेक और रिसर्च प्रपोजल ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म और हम फेमिनिज्म पे करते हैं, या फिर आप जो सोच रहे हो कि बहुत यूनिक है, लेट्स ट्राई दिस आउट, और जब आप टाइप करोगे ना तो आपके पास 1000 प्लस रिसर्च प्रपोजल और PhD का वो चीज़ वहाँ पे
रहेगा ऑलरेडी. सो दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट कि आप हमेशा वहाँ पे देखिए और आपको हमेशा एक कनेक्शन मिल जाता है. ठीक है. सो येस, दिस इज करेक्ट. देन इट मे हेल्प यू टू डेवलप एन एनालिटिक फ्रेमवर्क. येस, इट एब्सोल्युटली डज. आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है, आपको एक समझ में आता है कि हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ दिस इज गोइंग टू बी हेल्प. इट इज़ हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स. एब्सोल्युटली येस. आप जो बना रहे होगे, मैथ्स का बना रहे हो, साइंस का बना रहे हो, किसी का भी PhD बना रहे हो, इट विल हैव सम इंटरप्रिटेशन इन योर फाइंडिंग्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चन फॉर यू. येस. और जो अपना थीसिस लिखे रहते हैं उन्होंने लास्ट में ये दिया रहता है कि हाँ, आप इन फ्यूचर अगर आप कोई बना रहे हो तो आप ये सारे क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हो. तो येस, इन चारों का आंसर है ABCD, सब करेक्ट है. ठीक है. ABCD ऑल आर करेक्ट. Now we move to an epistemological position that advocates the application of the methods of the natural sciences to the study of social reality and beyond. It refers to positivism. Positivism क्या है, ये इसका definition है. So yes, do understand कि अगर कुछ भी methods है जो कि natural science से social reality और उसके beyond के बारे में बताता है कि क्या उसका position है. So this is advocates that positivism. ठीक है. Then question number 21. Which of the following research institute were established between the first and the third 5-year plans? Again very important one. इसमें ये पूछा है कि पहला फर्स्ट ईयर प्लान और थर्ड 5-year प्लान्स में सबसे ज़्यादा कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था. तो इट वॉज, ये आपको याद करना पड़ेगा. सो दिस इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, देन C लोक भारती, एंड D दैट इज गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट. सो ये तीनों आप याद कर लीजिए कि जो फर्स्ट और थर्ड 5 years के प्लान में स्टैब्लिश हुआ था. इसका आंसर इज B, C एंड D. Now we move to the next question. The Nalanda University of Ancient India attracted students from various parts of Asia. Is that true? Yes, absolutely true. जब नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्म हुआ था तो दैट अट्रैक्टेड बहुत सारे, मतलब वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, बहुत सारे अलग अलग बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे पढ़ना बहुत पसंद करते थे. ठीक है. द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज ओवर shadowed by the universities in Europe and Arabia immediately after. नहीं, this is wrong. ऐसा नहीं होता है कि immediately जैसे अभी तुरंत बना, that was the, मतलब बहुत पहले का यूनिवर्सिटी इज दिस इन इंडिया. एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो गया, नहीं, इट डज नॉट, इट इज़ रॉन्ग. जब भी आप कुछ देखें ये वर्ड्स एक्सट्रीम वर्ड्स, दीज आर द एक्सट्रीम वर्ड्स. ठीक है. जब भी आप कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स देखें दैट इज रॉन्ग. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ठीक है. स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. Then we move to the next question. One of the 4 maxims of conversation, quantity maxim reflects the right amount of, it reflects the right amount of the information. And what does this mean? What does this mean कि 4 maxim of conversation का और quantity maxim क्या है? Information. जब स्पीकर बोल रहा होता है तो इट शुड बी लाइक, वो जो भी स्पीकर है, ठीक है, जो स्पीकर है जो बोल रहा होता है वो आदमी, इट शुड रिफ्लेक्ट राइट स्पीच. ठीक है. क्लियर मैसेज. ठीक है. उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और वो जो भी बोल रहा है दैट शुड बी क्लियर विदाउट ओवर शेयरिंग, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. ठीक है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 24. IPv6 address in computer networking is 4 times larger than IPv4 address. Yes, this is absolutely correct. ठीक है. Statement 2. The IP address gives the location of a device on the internet. Yes, we all know. Whereas the MAC address identifies the device connected to the internet. Yes, both are correct. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. जो IP एड्रेस क्या है, हम लोग को लोकेशन बताता है इंटरनेट पे, बट जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा ये डिवाइस बताता है कि वो डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं इंटरनेट से. ठीक है. Now we move to question number 25. Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? Objective formulation, selection of teaching methods and materials, content analysis, selection of evaluation devices. चारों ऑप्शंस करेक्ट है. पेडागॉजी में होता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन क्या है, सबसे पहले होता है कि हाँ आपको ऑब्जेक्टिव्स बताना है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है. फिर आपको टीचिंग का सिलेक्शन मेथड करना है कि टीचिंग का क्या मेथड होगा वो सेलेक्ट करना है. मटेरियल सेलेक्ट करना है. आप व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ा रहे हैं. ठीक है. देन कंटेंट एनालिसिस, दैट आप रियल लाइफ से बच्चों को गार्डन में ले जाके नेचर और ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं या आप उनको स्मार्ट बोर्ड पे दिखा रहे हैं. ठीक है. फिर सेलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस, क्या आप OMR शीट पे एग्जामिनेशन लिए तो आप उसको उस पर चेक कर रहे हैं या आप डायरेक्टली हाथ से कॉपी पेन पे चेक करें. सो these are the thing. So इस आंसर होगा A, B, C and D is the correct answer. Now we move to the next question. Which among the following is an open source software for data analysis? It is R, and R is the most important data analysis software for the statistical computing. जितना भी statistics का work होता है, this makes the work great and also it is used for the graphics. Okay. Now we move to the next question. The ability to generate unusual yet appropriate response to problems or question is known as convergent thinking. No, it is wrong. Convergent thinking का मतलब ही है कि आपको, ये ऐसा नहीं है कि unusual appropriate response or problem. No, it gives you the single and
बेस्ट ऑप्शन टू चूज। कन्वर्जन थिंकिंग का यही मतलब होता है कि मैंने एनालिसिस किया हुआ है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट येस बेस्ड ऑन माई नॉलेज आई विल चूज एंड फाइंड द बेस्ट सिंगल वन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वन, सो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड प्राइमरली ऑन द नॉलेज एंड लॉजिक इज नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग। नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो पहले से नॉलेज आप उस पर बेस करो। नो, इट डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हो, आप अपने लॉजिक्स पे ध्यान दे रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो ऑप्शंस को, एंड देन यू आर मेकिंग द डिसीजन, नॉट प्राइमरली। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 is are incorrect. To the next question, which of the following belongs to the field of proxemics in the communication? अब ये proxemics क्या होता है? Proxemics is that it is a study of how humans use and perceive space. It's all about space and how they avoid or interact with the social interaction. ठीक है, how they use the space in communication. ठीक है, तो communication में क्या belong करता है? Proxy, facial expression, territoriality, eye contact, crowding या personal space. So it depends on the crowding, then territoriality and the personal space. ठीक है, so the options are B, C and D. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टर्म दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया, वेरी इजी वन, ये आपका फ्री का मार्क्स देता है कि विंडो क्या है, आइकन क्या है, मेन्यू क्या है एंड पॉइंटर क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विंडो क्या है? व्हाट इज विंडो? Window is the representation and area on the screen display information for a specific program, that is window। होता है कि यार न्यू विंडो खोलो, लेट्स चेक आउट क्रोम का पेज हो गया, तो दैट इज विंडो, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज आइकन। व्हाट इज आइकन? आइकन रिप्रेजेंट्स अ फोल्डर और अ प्रोग्राम, कैन बी सीन विद इन अ विंडो और फ्री स्टैंडिंग ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। जैसे बहुत सारा ऊपर में बना होता है कि इस टाइप का आइकन होता है, ठीक है, ऐसा आइकन होता है। नाउ दिस इज वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, एवरीबडी इज यूजिंग कंप्यूटर और लैपटॉप, और नहीं भी तो आप फोन पे ही बहुत सारा कुछ यूज़ कर रहे हो, तो जिसका एक इंटरफेस बन चुका है, ठीक है। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू इज कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑप्शंस फॉर अ सर्टन प्रोग्राम। आपको क्या है मेन्यू में, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर? आप जिससे सेलेक्ट करते हैं ऑप्शंस को, आइकन्स को और क्लोज ओपन विंडोज को, ठीक है। सो दिस इज आंसर, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, ठीक है। Now we move to next question. The University of Punjab was established at Lahore in 1882 to reduce the burden of the University of, कौन से का reduce करना चाहता था burden? It reduces, wanted to reduce the burden of Calcutta. Again very important, और ये बहुत ज़्यादा repeated है, बहुत ज़्यादा repeated, most repeated and again very important also, ठीक है। So now the next question is, given below the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as decision. So now what is DDT? So DDT, I have written the full form of DDT. It is dichloro diphenyl ट्राइक्लोरोइथेन। व्हाट इट इज, ये एक टिश्यूज होता है, ये टिश्यू होता है जो कि बहुत सारे स्पीसीज में भी मिलता है और ह्यूमंस में भी मिलता है, ठीक है। येस, इट इज करेक्ट, द असर्शन इज करेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द रीजन। डीडीटी इज रिलेटिवली इनसॉल्युबल्स इन वाटर, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट ये मिलता है वाटर में नहीं मिलता है, लेकिन ये रीडली सॉल्युबल्स इन फैट्स एंड ऑयल्स। सो इट इज काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये पेस्टिसाइड टाइप में आप बोल सकते हो, और इट कंटेन्स फैटी टिश्यूज होता है जो ह्यूमंस में घुस जाता है, एंड इट कंसर्न विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, एंड ये इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रहता भी है। सो येस, बोथ ए स्टेटमेंट ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32, एज पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है प्लीज वॉच इट, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजेंट्स आर सो रिलेटेड दैट वन ऑफ देम इज ट्रू एंड अदर मस्ट बी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर एक ट्रू होता है तो अगर फॉल्स होना चाहिए, और फॉल्स हो तो उसको ट्रू होना चाहिए, दोनों साइड से, ठीक है। सो इसमें ही आपको बताना है कि एक ट्रू है और एक इसका अपोजिट है, ठीक है। ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम नन मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, और इसका जो फॉल्स है वो है सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जब ऑल होता है तो हम लोग सम नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इन डेप्थ में आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये ऐसे ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आने वाला। गो एंड विजिट स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नो टेस्ट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी एंड स्किल्स। क्या ये सही है? येस, इट इज करेक्ट, असर्शन बिल्कुल सही है कि जो भी कोई भी ऐसा टेस्ट प्रोवाइड नहीं है ना कि जो एक परफेक्ट पिक्चर का एबिलिटी और स्किल, अगर हम लोग, हाँ ठीक है, हम लोग उसके नॉलेज के बारे में पता कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट द एबिलिटीज एंड स्किल्स। स्किल्स आर ओनली व्हेन यू विल फेस द रियल लाइफ चैलेंजेस, और स्किल्स में आप हर टाइम पे, नाउ स्किल्स आर बीइंग मैटर द मोस्ट। अब मार्क्स भी मैटर नहीं करते, स्किल्स और एबिलिटीज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और रीजन इसका क्या दिया हुआ है? टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो टेस्ट होता है ये एक स्मॉल सैंपल है, आउट ऑफ 100% इट इज ओनली 1%, दैट टेस्ट इंक्लूड्स ओनली 1%, ठीक है। यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप क्लियर भी कर लो, ठीक है, बाय लक और बाय हुक और बाय क्रूक और चांस, और अगर आपके पास एबिलिटीज और स्किल्स नहीं है, आफ्टर बीइंग अ प्रोफेसर ऑल्सो बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड आई हैव सीन द रियल एग्जाम्पल ऑफ इट।
देर आर सो मेनी कलीग्स ऑफ माइंड जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाई में उन्होंने अव्वल दर्जे का मार्क्स लाया है, ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ है उनका, बट व्हेन यू विल गेट द फीडबैक ऑफ देम वो अच्छा नहीं है। तो दैट वुड इट्स टेस्ट की टेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है एबिलिटी और स्किल्स का, इट इज ओनली वन सैम्पल। आप ठीक है, आप जेआरएफ क्लियर हो, आप अवॉर्डी हो, बहुत सारा आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये है वो है, बट द मेन थिंग, माई मेन मोटो इज टू डिलीवर अ लेक्चर दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट, दे शुड अप्रिशिएट इट, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड टेक दैट नॉलेज एंड दे शुड टेक दैट नॉलेज इन देयर रियल लाइफ और उससे वो बेहतर बने। दैट शुड बी द मोटो, नॉट कि हाँ ठीक है कॉपी पेस्ट किए और बच्चों को पढ़ा दिया और याद कर लिया। नो, वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते वैसे। सो अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, आज से ही प्रोफेसर बनने का सपना शुरू कर दीजिए और सोचिए कि अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप एक बच्चे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप कैसा प्रोफेसर चाहेंगे। बस आपको वैसा प्रोफेसर बनना है खुद, ठीक है, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए और आप खुद वैसा प्रोफेसर बनिए जिससे बच्चों को सब समझ में आए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Now we move to the next question. If the statement some rectangles are not squares is given as true, क्या बोला है कि जो some rectangles है, कुछ rectangles square नहीं है, ठीक है, square नहीं है, then according to the square of opposition, again square of opposition, which of the following statements can be immediately inferred as to be false. तो इसका false क्या होगा, some लिखा हुआ है और not लिखा हुआ है, some और not का क्या होता है all, जो कि हम लोग अभी तुरंत ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखे थे। तो all rectangles are square, this is the correct answer. Now we move to next question. Which of the following contextual factors determine meaning in communication behavior? तो meaning ही सबसे ज़्यादा important है। आप 1 घंटे लेक्चर दीजिए और उसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उसका मीनिंग अगर क्लियर नहीं है, नो यूज़ ऑफ टॉकिंग, नो यूज़ ऑफ गिविंग योर लेक्चर ऑफ 1 आवर और 2 आवर, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल लोकेशन, येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीडिंग इवेंट्स, येस, नॉन फंक्शनल गोल्स कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई बात ही नहीं करेगा, और एब्सेंस ऑफ ऑडियंस, जब ऑडियंस रहेगी नहीं तो आप अपना टॉक किससे बोलेंगे, सो इट इज़ रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी. Now we move to the another question. This is from the Indian literature, Indian logic question. Okay. Then according to classical Indian school of logic, Nyaya is the argument sound is eternal because it is audible is fallacious. Yes, it is correct. ठीक है, इसमें भी आपको अगर आप ऊपर से पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है. As of now I will not make you understand क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आप इसके लिए इंडियन लॉजिक का आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा. According to classical Indian school of logic, the argument sound is eternal because it is audible commits the fallacy of irregular medical term where the middle term is too wide. No, it is incorrect. ये irregular middle term क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि साउंड इटर्नल है, नो ये इटर्नल नहीं है, ठीक है, ये इटर्नल नहीं हो सकता, आप सब चीज़ को इटर्नल नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इट इज़ नॉट इरेगुलर मिडिल टर्म, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग. सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. Now the next question is when the primary function of a communication is to convey new information. जब कम्युनिकेशन का प्राइमरी सबसे पहला फंक्शन होता है कि किसी चीज़ को कन्वे करना, न्यू इन्फॉर्मेशन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है. Now the next question is the Convention on Biological Diversity is dedicated to promote sustainable development conceived as a practical tool for translating the principles of Agenda 21. And what is Agenda 21? Agenda 21 it is about the sustainable development. कैसे आप sustainable development से हर चीज़ को sustain बनाते हैं, and that is all about biological diversity. Now the next question is that which of the following steps were taken by the University Grants Commission during the second 5-year plan? Again 5-year plan से आप देख सकते हैं अभी तक में 4 क्वेश्चन आ चुका है. एक यूनिवर्सिटी का कितना यूनिवर्सिटीज़ होता है, कौन सा हंटर कमीशन आया था, वो एक आया था कि फर्स्ट और थर्ड 5-year प्लान में क्या था, और नाउ नेक्स्ट दिस की सेकंड 5-year प्लान में कौन सा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्टेप्स लिया गया. तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टेकन वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ 3-year डिग्री कोर्स, जो कि आज हम लोग बात करते हैं BA MA, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट. देन improvement in the libraries and laboratories, yes it was also there. And the C1 increase in the salaries of university teacher. No new departments नहीं है, गलत है, हिंदी was made the optional, कभी optional बनाया नहीं गया लोकल यूनिवर्सिटीज़ को, no. So the correct answer is A, B and C. So the next question is according to Buddhism linguistic communication should be used to adopt moral stance. Yes obviously it is correct. Buddhism linguistic के communication के according क्या होना चाहिए कि हमें मोरल स्टैंस यूज अडॉप्ट करना चाहिए. क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय, कैसे नहीं, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन करने ही के लिए ही तो बुद्धा जी गए थे और इसमें बोल रहा है कि वही नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा, नो लिक्विड आर बेवरेजेस, कोई भी लिक्विड बेवरेजेस नहीं है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट खोजना है हमें. नो बेवरेजेस आर लिक्विड, ये तो बिल्कुल हाँ, दिस इज बिल्कुल सही. नो बेवरेजेस नो लिक्विड, एकदम अपोजिट और वाइस वर्सा है. सो इट्स करेक्ट आंसर इज A and B. नाउ दिस इज द
पैसेज, और पैसेज के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट, किसी अभी ये पैसेज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई विल ओनली सजेस्ट कि वेन एवर यू आर डूइंग पैसेज थिंग, ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको कीवर्ड फाइंड करना है, फाइंड कीवर्ड्स, उसके बाद आप पैसेज पढ़िएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरे को कौन सा वर्ड्स ढूंढना है। और एक्सटर्नल नॉलेज नहीं फॉलो करना है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, कीप इट विद यू, बट पैसेज में अगर बोल दिया है कि द लर्निंग आवर यंग सिटीजन रिसीव एट होम, इन स्कूल एंड इन सोसाइटी बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16 विल शेप देम फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, आपको ये मानना होगा, भले आपका कंसेप्शन, आपका ओपिनियन अलग हो, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस पैसेज, फॉर दिस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आपको ये लाइन मानना होगा। और उसके बाद आपको आंसर करना है, क्योंकि अभी करने का ये कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम कम है। सो विदाउट एनी डिले आप ये कीजिए, ठीक है। यस, दैट वाज पेपर 1 दिसंबर 2023। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड यस, फॉर द डीपर क्वेश्चंस, फॉर द डीपर इनसाइट्स, यू हैव टू रीड देम, बिकॉज अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ रहे हो और आपको डीप एनालिसिस नहीं पता है, आपको इंडियन लॉजिक नहीं पता है, आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस नहीं पता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज आप उसका वीडियो देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड यस, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।